Hi guys, welcome back to the YouTube channel of I'm Spragraj. So let's start with another set of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solution. So this particular set I've taken from previous year's SimCat and set is a DI based set. And the set says there are exactly six segments in the Indian shoes market, namely sneaker, formals, loafers, boots, and sandals. Five brands dominate the shoe market in the country. The following two radar charts represents the following. Radar chart number one, relative market share by value of each brand expressed as a percentage of the total market share of the five brands taken together in each of the six segments. For example, out of the total revenue generated by the five brands taken together by selling sneakers, 30% contribution to comes from brand one. Radar chart 2, market share by value of the five brands taken together in six different segments. For example, out of the total revenue generated by all the shoe companies in India by selling loafers, 72% contribution comes from these five brands. Similarly, out of the total revenue generated by all the shoe companies in India by selling formal type shoes, 75% contribution comes from these five brands. Question number one क्या बोला हुआ है? The total market size for sneakers, formals, sports, loafers, boots, and sandals in India are in the ratio 3:5:2:3:2:1. What percent of the revenue is generated by brand one by selling loafers type shoes? Question number two पूछा हुआ है, the market size for sports type shoes in India is rupees 3,200 crore. What is the market size for sneakers in India? If the revenue generated by brand 5 by selling sports type shoes is same as the revenue generated by brand 2 and brand 3 by selling sneakers. Question number three बोला find the ratio of the market size for sneakers, formal, sports, loafers, boots, and sandals respectively in India, given that the highest amount of revenue is generated by any of these five brands from the sale of each type of uh, these six shoes in the is the same. ठीक है. Question number four बोला if the total annual revenue generated by Indian shoe market uh, by Indian shoes market is equally contributed by sneakers, formal, sports, loafers, boots, and sandals, then which brand generates maximum revenue by selling shoes from a single segment? आपने को क्या बोला हुआ है? 6 अलग-अलग सेगमेंट है, स्नीकर, फॉर्मल, स्पोर्ट्स, लोफर, बूट्स, सैंडल्स। उन 6 अलग-अलग ब्रांड जो सेगमेंट है, उनमें 5 अलग-अलग ब्रांड्स अपना सेल कर रहे हैं। अपने को 2 अलग-अलग चार्ट दिए गए। पहले चार्ट के अंदर ये दिखा रहा है कि जो वो स्नीकर है, उसमें स्नीकर में ब्रांड 1 का कंट्रीब्यूशन कितना है, ब्रांड 2 का कितना है, 3 का कितना है, 4 का कितना है, 5 का कितना है और जो चार्ट नंबर 2 है वो ये दिखा रहा है कि इन पाँचों ने मिलके उस पर्टिकुलर सेगमेंट में कितना बेचा। यानी कि ये जो 80% है ना, ये 80% क्या है? मान लो स्नीकर में 1000 करोड़ की मार्केट है या 1000 ऐसा 100 करोड़ की मार्केट है। 100 करोड़ की मार्केट में से 80 करोड़ की मार्केट कम्स फ्रॉम ब्रांड नंबर 1 से 5 और उस फर्दर 80 करोड़ का सेग्रीगेशन यहाँ दिया हुआ है। जैसे ये 30% है, फिर इधर है, फिर ऐसा-ऐसा करके कुछ अपने को दे रखा है। अब होता क्या है ना, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे चार्ट को रीड नहीं कर पाते हैं या दे हैव नॉट एक्सपीरियंस एनी दीस टाइप ऑफ सेट, तो वो करने से भागते हैं। तो यार टू बी वेरी ऑनेस्ट ये ना ये टाइप के सेट बहुत आसान होते हैं, ठीक है? मतलब इनको डेटा कैप्चर का एक बार समझ लो कि वो कैसे को हम रीड कैसे करते हैं एंड वन्स यू गेट दिस पॉइंट फिर आपके लिए वो ईज़ी बन जाता है, ठीक है? इसका एक बेहतर अप्रोच क्या हो सकता है? आप एक बार समझ लो एंड इस जो ये पूरा चार्ट है ना, ये जो तुम्हारा रडार चार्ट बोलो या वेब चार्ट बोलो, इसको तुम एक टेबल के फॉर्म पे डाल दो। टेबल के फॉर्म पे डालने में इट विल टेक हार्डली 2 टू 3 मिनट्स बट उससे तुम्हारी चीज़ें आसान हो जाएँगी। तो मैंने यहाँ पे भी यही करा हुआ है। मैंने क्या करा हुआ है, एक टेबल क्रिएट कर लिया। अब उस टेबल में सारे डेटा मैं भरने वाला हूँ। देखो, मेरे को क्या पता है, यहाँ पे क्या है 30% है। 30% बोले तो ब्रांड 1 फॉर स्नीकर, तो 30% यहाँ पे आ गया। उसके बाद कितना है, रेड वाला है 25%, ठीक है? फिर आ जाता है ये वाला पार्ट व्हिच इज़ 20%, वो कौन है? फिर आ जाता है ब्लैक वाला पार्ट व्हिच इज़ अ, 10% सॉरी 15% एंड देन कम्स ये वाला पार्ट व्हिच इज़ 10%। तो इनका देखो सम कितना बनना है 40, 60 और 100, ठीक है? यही पूरा 100% है जो कि अपने को यहाँ पे बनाना है। इसी तरीके से लेट्स राइट दिस फॉर ऑल द सेगमेंट। फॉर्मल्स का क्या हो रहा है? फॉर्मल्स में अपने को कितना है 40, 30 सॉरी 40, 35, 30 यानी कि ब्रांड नंबर 3 है तुम्हारा 30, ठीक है? फिर आ जाओ 25, 20, 20 पे तीनों हैं, 20 पे ये भी है, ठीक है? 20 पे ये भी था, 20 पे ब्रांड नंबर 4 भी है और 20 पे तुम्हारा ब्रांड नंबर 2 भी है, ठीक है? और लास्ट में कौन-सा बच रहा है? यहाँ पे कितना आ गया 20, 10 और 5 सॉरी कितना था? 40, 35, 30, 25, 20
15, 10, 10 था ये। ठीक है, सम चेक कर लेते 10, 20, 30, 30, 60 और ये देखो एकदम सही जा रहा है। अच्छा अ, लेट्स फिगर आउट फॉर स्पोर्ट्स आल्सो। स्पोर्ट्स में अपने को पता है ब्रांड नंबर 5 ने 40 है, ठीक है। 40, 30 है तुम्हारा ये ब्रांड नंबर 4, 3 नहीं ब्रांड नंबर 4 है तुम्हारा 30, फिर है ये तुम्हारा 20, ये कौन सा है ब्रांड नंबर 2 नहीं ब्रांड नंबर 3 सॉरी, फिर ये दोनों हैं 5-5 पे। तो 5-5 10 30 30 60 और ये 100, ठीक है, ये भी पूरा 100 बन गया। अच्छा, फिर ले लेते हैं लोफर्स के लिए। लोफर्स के लिए क्या-क्या है? इधर है 35%, 35 इसका है ब्लू सेकंड वाला, 35 फिर उसके बाद कितना है 30 और 25, 25 के बाद कितना है 20 फॉर ब्रांड नंबर 4, फिर 20 के बाद है 15, 15 के बाद क्या है तुम्हारा 5, ये आ गया 5 यानी कि इतना बन गया 25, 35, 60, 80 और ये 100, ठीक है। ये 100% यहाँ पे भी तैयार हो गया। बूट के लिए कितना है 40, 35, 30, 25, 25 है तुम्हारे 2 लोगों के यानी कि 25 है इधर भी और 25 है इधर भी। फिर उसके बाद कितना है 25 के बाद है 20 है, 20 है 2 लोगों का येलो का और ब्लू का यानी कि इन दोनों का है येलो का और ब्लू का। एंड देन है इसका कितना 10 है, तो ये भी तुम्हारा 100 पूरा बन गया, ठीक है। ये बचा 100 बनाना। अब इसका 100 कितना बनेगा? इधर है 35, 35 किसका है? ये वाले का है। 35, 30, 25 और ये कितना आ गया 20, 20 के बाद ये दोनों है तुम्हारा 15, 15, 15 है तुम्हारा येलो भी एंड ब्लैक वाला भी यानी कि ब्रांड नंबर ये। उसके बाद क्या बचा? ये वाला पार्ट विच इज कितना 10, 40, 45 सॉरी 40, 35, 30, 25, 20, 15 और ये हो गया तुम्हारा यहाँ पे 10। तो एक बार चेक कर लेता हूँ 15, 35, 25, 15 कितना हो गया 15, 15, 30 ये 60 और 90, 100 ठीक है परफेक्ट। सबसे पहला काम तो ये करना था अपने को कि हमने क्या करा इसको 2 मिनट या 3 मिनट लगा के अपना सारी चीज़ों को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे ये मैं रब कर देता हूँ, इस पे मैं परसेंट लिखने वाला था बट फिर छोड़ दिया। एक काम और करते हैं लगे हाथ, अब ये भी नोट डाउन कर लेते हैं कि इनकी स्नीकर्स का पांचों ब्रांड का मार्केट शेयर टोटल मिला के कितना था पूरे मार्केट में से? 80% था, 70% है फॉर्मल्स के लिए, ठीक है, 75% है, फिर कितना है 72% है लोफर्स के लिए, फिर कितना है 72 के बाद ये है 60% फिर से आ गया और ये बन गया तुम्हारा 50%। अभी क्या है ये पार्ट है, ये पार्ट क्या डिनोट करता है 50% मतलब पूरे सैंडल्स जितने बेचे गएंगे उसमें से इन पांचों का मिला के 50% है। तो लेट्स से 100 करोड़ की मार्केट है सैंडल्स की, तो उसमें से 50 करोड़ ब्रांड 1 से लेके 5 तक करे और फिर रिमेनिंग ब्रांड्स ने बाकी बचे हुए 50 करे होंगे, ठीक है। अब ये काम सबसे पहला करना था आपको। अब इसके बाद क्या है क्योंकि ये कैलकुलेटिव डीआई का सेट रहता है, आपको इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस तो रहती नहीं है काम करने के लिए। तो लेट्स जंप टू द क्वेश्चन एंड देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला, उसके हिसाब से चीज़ों को ऑपरेट करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बोला हुआ द टोटल मार्केट साइज फॉर स्नीकर, फॉर्मल, स्पोर्ट्स, लोफर्स, बूट्स एंड सैंडल इन द इंडिया आर इन द रेशियो 3:5:2:3:2:1. What percent of revenue is generated by brand one by selling loafers? कह रहा है कि टोटल मार्केट साइज फॉर ऑल दी सेगमेंट इज गिवन, उसका रेशियो दिया हुआ और पूछा हुआ है कि तुम्हें व्हाट परसेंट ऑफ रेवेन्यू जनरेटेड बाय ब्रांड वन यानी कि इस वाले का पूछा हुआ है फॉर विच दिस फॉर लोफर्स इसका पूछा हुआ है, ठीक है। अब क्योंकि इसका रेशियो दिया हुआ है इस पे दिमाग लगाते हैं, ठीक है, पे दिमाग लगाया जाए। लेट्स से ये कितना है 352, इसको मान लेते हैं कि ये पूरा 1600 की मार्केट है यानी कि 300 की इधर ले लेते हैं, 500 ले लेते हैं, कितना आ गया 200, 300, अब ये जो पार्ट है ये क्या है पूरी मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरी मार्केट है, ठीक है। ये टोटल मार्केट है,
अब इस टोटल मार्केट में से 300 का ये जो 80% है, ये वाला पार्ट, ये दिखाता है इन पाँचों का कंट्रीब्यूशन, तो यानी कि इनका पार्ट कितना होगा? 240। ऐसे ही इसका कितना होगा? 350। इसका कितना होगा? 3/4। 3/4 कितना हो जाएगा? 150। इनका हो जाएगा 72, यानी कि 2 3 जा 6 और 2 1 6। इसका कितना हो जाएगा? 120। इसका हो जाएगा 50। ठीक। अब अपने को क्योंकि ये वाले अमाउंट का चीज़ मिल गई है, तो फ्रॉम दिस आई कैन फिगर आउट फॉर ब्रांड 1 आल्सो, यानी कि ब्रांड 1 का कितना होगा? ब्रांड 1 का 240 का 30, यानी कि 4 3 जा 72। अच्छा, इधर कितना आया? 35। ठीक है, 5%, 150 का 5% कितना होगा? 15 और 7.5, 25, यानी कि 1/4। 1/4 कितना होगा? 5 टाइम्स और 4 टाइम्स। 120 का 20%, यानी कि 24। 50 का 15%, यानी कि 7.5। ब्रांड 1 का टोटल अमाउंट कितना है? 0.5 जोड़ लेंगे, 0 कैरी 1, 2 1 3, 8, 7 15, 15 4 19, 19 4 23, 23 और 7 30, कैरी 3, 7 10, 13, 5 18, 2 20, यानी कि टोटल मार्केट कितनी आ रही है इसके हिसाब से? 200। ठीक है, ब्रांड 1 के लिए, और उस ब्रांड 1 में अपने को ये चाहिए था 25% वाला, यानी कि 25% बोले तो अपने को चाहिए ये वाला हिस्सा 54, यानी कि 54 इंटू 200 अपॉन 100, यानी कि ये कैंसिल, कितना बन गया? 27, यानी कि पहले का आंसर क्या होना चाहिए था? 27%, यानी ऑप्शन नंबर बी हैज टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आसान था ये वाला क्वेश्चन, तो मतलब डेटा अगर तुम्हारे पास है और थोड़ा लैंग्वेज समझ पाते हो, तो मतलब क्वेश्चन नंबर 1 वाज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा लॉजिकली अपने को दिमाग नहीं लगाना था। लेट्स जंप टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला हुआ है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि भाई अगर क्वेश्चन नंबर 2 बोला हुआ है कि द मार्केट साइज़ फॉर स्पोर्ट टाइप्स ऑफ शूज़ इन इंडिया इज़ 32,000 करोड़। जो मार्केट साइज़ है वो कितना है? 32,000 करोड़ है। ठीक है, ये क्या है? पूरा मार्केट साइज़ है। व्हाट इज़ द मार्केट साइज़ फॉर स्नीकर्स इन इंडिया? अच्छा, स्पोर्ट्स टाइप यानी कि इसकी बात हो रही है। इसका अगर पूरा 32,000 करोड़ है, ठीक है, तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 24,000 करोड़, जो कि इन पाँचों को मिला के होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि व्हाट इज़ द मार्केट साइज़ फॉर स्नीकर्स इन इंडिया, यानी कि इसकी पूछ रहा है अपने को इस वाली चीज़ का, है ना? इन इंडिया व्हाट इज़ द मार्केट साइज़ फॉर स्नीकर्स इन इंडिया इफ द रेवेन्यू जनरेटेड बाय ब्रांड 5 बाय सेलिंग टाइप ऑफ शूज़, ये ब्रांड 5 ये बेचने पे इज सेम एज़ अ रेवेन्यू जनरेटेड बाय ब्रांड 2 एंड ब्रांड 3, यानी कि इन दोनों के ब्रांड के बराबर है। इनकी सेल और इनकी सेल बराबर है। इनकी सेल कितनी होने वाली है? 40% ऑफ ये वाली वैल्यू, ठीक है। इसका 40% कितना हो जाएगा? 9600, ठीक है। ये वैल्यू क्या है? 9600। ये इन दोनों के बराबर है। इन दोनों के बराबर होने का मतलब 9600 इज़ इक्वल्स टू 30% ऑफ व्हाट? ऑफ ये वाले का पार्ट होना चाहिए था, ठीक है। 80% ऑफ एक्स। एक्स क्या है? यहाँ पे पूरी मार्केट की बात हो रही है और अपने को क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा भी है कि बताओ स्नीकर्स की टोटल मार्केट कितनी है, ठीक है। तो अगर हमको स्नीकर्स की मार्केट है एक्स, उसका 80% इन पांचों का मिला के हो जाएगा और उस 30% विल बी ये दोनों की वैल्यू विच इज 9600। तो यानी कि सॉल्व कर देंगे तो कितना बन जाएगा? 9600 डबल जीरो और ले लेते हैं अपॉन 3 इंटू 8 इज इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू अपने को यहाँ पे मिल जाएगी, इधर आ जाएगा 40, यानी कितना बन जाएगा? 40,000 करोड़ हैज़ टू बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। अगेन एकदम ही स्ट्रेट, ऐसा क्लियर कट आप आराम से निकाल सकते थे। कुछ भी ऐसा वो नहीं था कि जिसमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाना था। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। ठीक है, चलो लेट्स जंप टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला हुआ है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भाई find the ratio of the market size of a sneakers, formal, sports, loafer, boots, and sandal respectively in India, given that the highest amount of revenue is generated by any of these five brands from the sale of each type of six shoes is the same। अच्छा, कह रहा है कि इन पांचों ब्रांड, छह सेगमेंट में पांचों ब्रांड में से सबका एक एक कोई ऐसा जो भी रिवेन्यू जनरेट होता वो सबका बराबर था, जो भी हाईएस्ट जनरेट करा था। ठीक है, हाईएस्ट कौन करेगा? जिसकी ज्यादा बिक्री होगी। ज्यादा बिक्री यानी कि परसेंटेज कंट्रीब्यूशन से अपने मिल जाएगा। यानी कि फॉर स्नीकर इट हैज टू बी ये वाला ब्रांड, ठीक है। फॉर फॉर्मल इट हैज टू बी ये वाला ब्रांड,
फॉर स्पोर्ट्स इट हैज़ टू बी ये 40 ही होना चाहिए। फॉर लोफर्स इट हैज़ टू बी 35। फॉर बूट्स इट कैन बी एनी वन ऑफ देम। हाईएस्ट रेवेन्यू यही दे रहे होंगे। फॉर सैंडल्स इट हैज़ टू बी 35%। अब कह रहा है इन सबका रेवेन्यू बराबर है। इन सबका रेवेन्यू बराबर होने का मतलब 30% की वैल्यू, 30% की वैल्यू, 40% की वैल्यू, ठीक है, 35% की वैल्यू एंड 25% की वैल्यू और 35% की वैल्यू कोई एक बराबर है। ठीक है, बराबर। अब बराबर के लिए कैसे करा जाए? तो लेट्स टेक एन एलसीएम। ठीक है, ले लेते हैं कोई एलसीएम की वैल्यू। एलसीएम वैल्यू क्या ले लेते हैं? 30-30 का 40 का ले लेंगे तो कितना आ गया? 120। 120 में अगर 35 को निपटाना है तो अपने को और 25 भी रखना है। ठीक है, तो मतलब 840, 840 से काम हो जाएगा, लेकिन 840 से ये नहीं हो पाएगा। तो 840 में अपन 5 और ऐड कर लेते हैं, तो यानी कि 5 4 जा और 5 8 जा 420। तो ऐसा 42,000 का मार्केट ले लेते हैं। ठीक है, मतलब नॉट एग्जैक्टली एकदम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हो, एक ऐसा कॉमन नंबर ले लो 4200, 42 या 2100 भी ले लोगे तब भी बन जाएगा, या 8400 ले लोगे। कोई ऐसा वैल्यू जो कि चीज़ों को थोड़ा आसान बन जाएगा। देखो समझना, यहाँ पे ना कोई एग्जैक्ट वैल्यू की बात नहीं हुई, सब रिलेटिव पे चल रहा है। तो रिलेटिव में परसेंटेज और रेशियो एक जैसे चलते हैं। यू टेक 100 और 1000 और 10,000। इट्स जस्ट दैट टेक दैट नंबर व्हिच कैन मेक योर कैलकुलेशन ईज़ी। सिंपल सी बात है। आप अगर कैलकुलेशन आसान बना ले जाओगे तो यू आर देयर। और लगोगे तुम कि यार नहीं तो मैं तो सर 21 ही लूँगा, मैं तो डेसिमल की वैल्यू निकालूँगा, तो भाई करो, फँसो। सिंपल सी बात है। तो 2100 ले लो, 4200, कोई ऐसी वैल्यू व्हिच इज़ ईज़ी फॉर यू टू कैलकुलेट। ठीक है? चलो लेट्स से 4200 ले लेते हैं। ठीक है? ऐसा। अब मेरे को क्या पता है कि 4200, ठीक है, अगर 4200 है 30% के बराबर, यही कहना चाह रहा हूँ ना कि 4200 इज 30% के बराबर, यानी कि ये जो पूरी मार्केट है 4200 डिवाइडेड बाई 0.3 अगर कर दूंगा तो दिस इज नथिंग बट 14,000 की मार्केट हो रही होगी। ठीक है, सॉरी, ये पूरी मार्केट कितनी हो रही होगी? 14,000 की। ठीक है, इसी तरीके से फॉर्मल्स पे बात करते हैं। फॉर्मल पे यानी कि 30%, अगेन वही 14,000 इसको भी होना चाहिए था। ठीक है, अब ये कितना है? 40%। 40% ऑफ सम वैल्यू इज 4200, तो आई एम यूजिंग कैलकुलेटर फटाफट से। ठीक है, 4200 डिवाइडेड बाई 40%, तो कितना आ गया? 10,500 की मार्केट होनी चाहिए थी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या है अपना? 4200 डिवाइडेड बाई 35, 35 बोले तो 4200 डिवाइडेड बाई 0.35, तो ये आ गया तुम्हारा 12,000 की मार्केट होनी चाहिए थी। ठीक है, अच्छा, 25 तो वन फोर्थ होता है। वन फोर्थ मतलब 4200 का वन फोर्थ बोले तो 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, तो 16,800 ऐसा। ठीक है, 16,800 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, 4200 एकदम सॉर्टेड आ रहा है। अच्छा, लास्ट है 35%। 35% तो अभी अपन फिगर आउट करके है ना, इसका था कितना? 12,000, तो यहाँ पे भी आ गया 12,000। ठीक है, यानी कि 12,000 पे 12,000 पे अपन 35% ले लेंगे तो दिस बिकम्स 35% इज 4200। ठीक है, अब यहाँ पे रुकना नहीं है। अपने को पूछा क्या था? बोला था मार्केट साइज़ का पूछा था, और ये जो साइज़ हमने निकाला है, ये तो ये वाला पार्ट निकाला ना, ब्रांड नंबर 1 से लेके ब्रांड नंबर 5 तक का सम निकाला ये तो हमने, है ना? हमने ये ज़ूम करके तो हमने तो ये फिगर आउट करा है। अब अपने को इसको यूज़ करके ये भी निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकलेगा? यानी कि ये जो वैल्यू है उसका 80% ये है, यानी कि 14,000 का 80% कितना आने वाला है? 17,500। ठीक है, अच्छा, 14,000 का 70% कितना आने वाला है? ये तो 20,000 होना चाहिए था। ठीक है, 20,000। ठीक, 14,000 का 10,500 का 75%, यानी कि 4/3 कर लो तो कितना आ जाएगा? 14,000। अच्छा, 14,000 ही आ गया। 10,500 का बेसिकली 75%, 14,000 का 0.75। ठीक है, अच्छा, 72, 12,000 का 0.72, तो ये आ गया तुम्हारा 16,600 ऐसा 66। ठीक है, अब ये थोड़ा तुम्हारे लिए प्रॉब्लमैटिक बन सकता है। ठीक है, क्योंकि बाकी सब तो यार 0 0 0 में चल रहा है। अब क्योंकि मैंने नंबर 4200 लिया है, 2100 लेता तो ये 833 आ जाता, मैं और मल्टीपल लेता तो कुछ ऐसा मेरे को लेना चाहिए था, शायद मैं 16 5 जा ले लेता तो शायद काम बन जाता। बट ठीक है,
वो तो अपन सॉल्व करेंगे तो रेशियो पे अपने को दिख जाएगा। ठीक है। 16,800 16,800। अब इस वाले पार्ट के लिए यार कैलकुलेटर यूज़ कर लो, मतलब 0.25 तो कितना आ गया? ठीक है। 0.60 था ना, सॉरी। ये कितना आ गया? 28,000। एंड लास्ट 12,000 का, ये तो 24,000 होना चाहिए था। ठीक है। अब अपने को क्या है, ये 4 वैल्यूज़ हैं जिसका अपने को रेशियो यहाँ पे पूछा हुआ है। यही 4 वैल्यू का रेशियो पूछा हुआ है। अब कैसे इसको फिगर आउट करा जाए? ये तो यार बड़ा चैलेंज आ गया, क्योंकि अपने पास कोई वैल्यू ऐसी है ही नहीं जो रेशियो में जा रही हो। ठीक है। अब यहाँ पे जो तुम्हें मदद कर सकता है ना, यही मदद कर सकता है। ये मदद कैसे करेगा? ये जो 16,666 है, ये कौन-सी वैल्यू होनी चाहिए थी? वो ये हो सकती थी, ये हो सकती थी, या तो ये हो सकती थी, या तो ये हो सकती थी। ठीक है। अगर ये 16,666 100 वाली वैल्यू है, यानी कि ये डिवाइड किससे हो रहा है? 166.66 से। तो 17,500 को 166.66 से करता हूँ तो मेरा आंसर आ रहा है 105। ठीक है। 105 यानी कि लॉजिकली ये हो सकता है। ठीक। लेट्स चेक अनदर वैल्यू आल्सो, मतलब मैं 20,000 को चेक करूँगा 166.66 से। जैसे ही मैंने करा मेरा 120 आ रहा है। ठीक है। इसके लिए आई एम यूजिंग कैलकुलेटर। ठीक है। 14,000 का डिवाइडेड बाई 166.66 का 84 आ रहा है, यानी कि अभी तक तो ये सही जा रहा है। 28,000 का डिवाइडेड बाई 166.66 तो यानी कि 168 आ रहा है। ठीक है। सिमिलरली 24,000 का डिवाइडेड बाई 166.66 यानी कि 144 आ रहा है। सो करेक्ट आंसर हैज़ टू बी ऑप्शन नंबर सी। अगर मेरा कुछ और आता तो आई वुड हैव चेक्ड ऑन अदर आल्सो, क्योंकि मैं इसमें कैलकुलेटर की मदद ले रहा हूँ। सिंपल सी बात है। तो हर जगह पे आप मतलब मेंटल कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं फँस सकते हो, मतलब फँस जाओगे एज़ इन, मतलब आप कॉम्प्लेक्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेट्स जंप टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 वाज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा था जो कि आपसे मेहनत करवाने वाला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला हुआ है? कह रहा है कि भाई आपने इफ द टोटल रेवेन्यू generated by Indian shoe market is equally contributed by sneakers, formal, sports, loafers, boots, and sandals. Then which brand generates maximum revenue by selling shoes of a single brand? ठीक है, कह रहा है कि ये जो पांचों से छह सेगमेंट है, ये इक्वल रेवेन्यू जनरेट करते हैं पूरी मार्केट में। तो लेट्स से 100 करोड़ है सबका सबका। ठीक है, उस 100 करोड़ का 80 करोड़ वुड बी फॉर स्नीकर्स का, पांचों का मिला के ऐसा ऐसा करके। ठीक है, अब थोड़ा समझना, अगर मैं सबको 100 करोड़ मान लेता हूँ, ठीक है? तो ये वैल्यू ही बचेगी सबकी, 80 करोड़, 70 करोड़, 75 करोड़, 72 करोड़, 60 करोड़, 50 करोड़, ऐसे ही बचेगा। आपने को पूछा हुआ है कि बताओ कौन-सा है जो कि तुम्हें सबसे मैक्सिमम देगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हिच ब्रांड जनरेट्स मैक्सिमम रेवेन्यू? मैक्सिमम रेवेन्यू कौन-सा देगा? जिसकी मार्केट भी बड़ी होगी एंड किसी का कंट्रीब्यूशन भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। तो यानी कि यहाँ पे बात करें तो 80 का ये बन सकता है कितना? 240, इससे ऊपर नहीं बन सकता। ठीक है? तो ब्रांड 1 का मैक्सिमम कितना बन सकता था? 240। और कहीं तो और कम ही बनेगा ना। ये देख लो 72 का 25% तो यार 1/4 तो और कम ही बनेगा। ठीक है? बिकॉज़ मैंने क्या करा, मान लिया कि भाई 100 करोड़ की मार्केट है सबके लिए। उसका 80 करोड़, 70 करोड़, 75 करोड़, 72 करोड़, 60 करोड़, 50 करोड़ ऐसे ही ले लिया मैंने। मान ही लिया कि भाई ये चीज़ है। अब देखो टेबल बनाया हुआ ना तो चीज़ें सब दिख रही होती हैं। आप जब टेबल नहीं बनाओगे तो आप इसी में उलझे रहोगे, ठीक है? तो ब्रांड 1 के लिए इट इज़ 24, 70, 75, ये तो बाकी चेक करने का कोई लॉजिक है नहीं। ब्रांड 2 में जो तुम्हें सबसे बड़ी वैल्यू दे सकता था वो था ये 35 और 72 यानी कि 72 इंटू 35 व्हिच इज़ 25.2 अगेन। अभी तो 24 और 25 है, ठीक है? तो फिलहाल ब्रांड 2 इज़ देयर। ब्रांड 2 है जो उससे ज़्यादा है, ब्रांड 1 से ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि ब्रांड 1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी बन रही थी? 24 बन रही थी। ब्रांड 2 में 35 इंटू 72 बन गई मेरी, इंटू 35% तो दिस इज़ 25.2। फिलहाल ब्रांड 2 का ये आ रहा है, ठीक है। ब्रांड नंबर 3 का तो अपने को चेक करने के लिए बोला नहीं। ब्रांड 4 में कौन हो सकता था? ये हो सकता था 75 का 30, 75 का 30 यानी कि 75 का 30% यानी कि 0.30 साढ़े 22 आ रहा है, खत्म। ठीक है। ब्रांड नंबर 5 पे चेक करते हैं। ब्रांड नंबर 5 में यार ये सबसे बड़ी वैल्यू है, ये कितनी है? 75 पे कितना? 40% यानी कि 30, यानी कि यार ये तो अपना क्या है, क्लियर कट विनर है। और वो कौन-सा वाला पार्ट है? वो ये वाला पार्ट है। ये तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी हैज़ टू बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। आई वुड रेट दिस एज़ अ मॉडरेट से डिफिकल्ट वाला सेट, मतलब एक तो डेटा कैप्चर का तुमने ये वाले सीखा, प्लस क्वेश्चन नंबर 3 वो समथिंग जो कि आप रेयरली देखते हो, मतलब थोड़ा मेहनत कराएगा। ठीक है। चलो कीप प्रैक्टिसिंग।